श्री गुरुदेव की बड़ा बेसी अभी 1 बजे जा रहे 12:30 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बड़ा बेसी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबने वंदन। सर्वप्रथम मारा गुरुदेव श्री वन गोस्वामी महाराज ने वंदन। आप सब वैष्णव भक्तों ने वंदन। माताओं ने बहनों ने सबने वंदन करीने हूँ मारू મને ગુરુદેવે 2 શબ્દો બોલાને કીધા છે, બોલું છું। મારાથી કાંઈ બોલાઈ જાય તો મને માફ કરજો। આપણે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે શાને માટે? ભક્તિ માટે, ભજન માટે, કૃષ્ણ ભગવાનને પામવા માટે। આપણા મનમાં અંદરથી છે, આપણે કદાચ બહાર નથી પાડતા। આપણને એવું છે કે મને ભગવાન મળે। ભગવાન એટલે કોણ? કોણ ભગવાન એટલે? કૃષ્ણ। કૃષ્ણ એક જ ભગવાન છે અને કૃષ્ણને પામવા માટે જ આપણે સર્જાયા છે। આપણે માનવ જન્મ મળ્યો છે ફક્ત કૃષ્ણના ચરણને પામવા માટે, કૃષ્ણનું દાસત્વ પામવા માટે જ આપણો મનુષ્ય જન્મ આપવામાં આવ્યો છે। આ મનુષ્ય જન્મ અલભ્ય છે। ઘણા બધા જીવોને આ જન્મ મળતો નથી। આપણા કોઈ પુણ્ય કર્મો, પુણ્ય સુકૃતિઓને કારણે આપણે જન્મ મેળવ્યો, આ મનુષ્ય જન્મ મેળવ્યો છે અને એનાથી વધુ સુકૃતિઓને કારણે પૂર્વજન્મમાં ઘણી બધી એવી સુકૃતિઓ કરી છે જેને કારણે આપણે સાધુ સંગ મળ્યો છે। સત્સંગ। સત એટલે કોણ? સત કોણ બોલે? તો સત્ય એટલે કૃષ્ણ। અને કૃષ્ણ કોણ? તો કે ગુરુ, સાધુ। જે સાધુજનો છે, મહાજનો છે, જેણે પોતાનું જીવન કૃષ્ણ માટે સમર્પિત કરી દીધું છે, એવા જે મહાજનો છે એનો સંગ મળે તો એનાથી વિશેષ કોઈ નથી। એક સાધુ સંગથી આપણું જીવન અમૂલ્યપણે બદલાઈ જાય છે। આપણે એક ઉર્ધ્વ ગતિમાં પામીએ છીએ। અત્યારે આપણે એવું છે કે આ કલિયુગમાં આપણે હંમેશા મટીરિયલ એટલે ભૌતિક ચીજોથી બહુ જ આકર્ષાય છે। ભૌતિક ચીજોથી આકર્ષવાને કારણે આપણા પર આવરણ આવી ગયું છે કે જેને કારણે આપણે ભક્તિમાં લીન થવા માંગીએ છીએ, થતા નહીં શકતા। કારણ કે આપણે અજ્ઞાનમાં છીએ। આપણી પાસે આપણા ઉપર અજ્ઞાન છવાયેલું છે। હવે આપણા અજ્ઞાનને દૂર કોણ કરે? સૌથી પ્રથમ તો સાધુ સંગ। સાધુ સંગ ક્યારે મળે? સત્સંગ આપણને ક્યારે મળે? આપણા પૂર્વ જન્મોની સુકૃતિઓ જેને કારણે મળે તો સાધુ સંગ મળે। સાધુ સંગ મળે તો આપણામાં એક લાલસા જાગે, એક આપણે શ્રદ્ધા જાગે, એક વિશ્વાસ જાગે ભગવાનમાં, સત્સંગમાં વિશ્વાસ જાગે, ભજનમાં વિશ્વાસ જાગે। એમ કરતા કરતા આપણે ભક્તિ તરફ વળીએ। ભક્તિ તરફ વળીએ તો ધીરે ધીરે આપણો વિકાસ થતો, ભક્તિમાં વિકાસ થતો જાય। ભક્તિનો વિકાસ થતો જાય એમ આપણા શરીરની મલિનતાઓ છે, જે અનર્થો છે, જે વિકારો છે, એ ક્રમશઃ ધીરે ધીરે દૂર થતા જાય। આપણે જે હરે નામ હરે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ તો એ બોલા પાછળનું આપણે આપણા શરીરના, આપણા જે મનમાં આપણે દેખાતા નથી પણ આપણામાં ઘણા બધા વિકારો ભરેલા છે ને આપણામાં। કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, આસક્તિ ઘણું બધું છે। એ બધું ક્રમશઃ ઓછું થતું જાય અને ઓછું થઈ અને આપણું મન, આપણું હૃદય ભક્તિ તરફ, ભગવાન તરફ વધુ ને વધુ ઢળે। જેમ ભગવાન તરફ વધુ ને વધુ ઢળશું એમ આપણું જીવન ઉચ્ચ થતું જશે। ઉચ્ચ જીવન થશું તો આપણે એક દિવસ ને એક દિવસ શુદ્ધ ભાવે જો ભજન કરશું અને ઉજ્જવલ ભાવે જો આપણે ભજન કરશું તો આપણું ભજન શુદ્ધ ભજન થશે। અને શુદ્ધ ભજન થશે તો એકના એક કલ્પમાં અથવા એકના એક ચતુર્યુગમાં અથવા એકના એક વર્ષમાં કે એકના એક દિવસે કે એકના એક ક્ષણે આપણે
રાધા કૃષ્ણના ચરણ કમલોની પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. એ સૌથી પ્રથમ તો સત્સંગનો પ્રભાવ છે. સત્સંગ જો આપણે કરશું તો જ આપણે આગળ વધીશું. સીધા કોઈ આપણને શકતું આપણને. તો માટે આપ સૌ આજે આવ્યા છો. આપને અમારા ગુરુદેવ જે ત્રિદંડી સ્વામી છે એને લાઇનેજમાં એટલે કે પરંપરાગત જે છે એમ ગુરુઓથી આપેલી જે સ્મૃતિઓથી જે ભાગવત કથા કરે છે, જે ભજન કરે છે, ભજન કરાવે છે, વિદેશોમાં ફરે છે, તો એ આપણા સદનસીબ છે કે આપણે આપણી માધાપરમાં આવ્યા છે અને માધાપરમાં પણ આપણે આપણા ઘરે આવ્યા છીએ. તો આપણે પૂજાબેન ના ઘરે આવ્યા છે અને આપણે સૌ એનો આડોશી પાડોશી લાભ લીધો છે. એ માટે આપ સૌ ધન્ય છો. આપને ખરેખર સુકૃતિવાન છો કે જેને આપણે તમારું જીવન તમે એક પગલું માંડ્યું છે. તમે સફળતાના શિખરો, સફળતા એટલે ભૌતિક સફળતા નહીં, પારમાર્થિક સફળતા. આપણે પરમાર્થ તરફ જઈએ, કારણ કે આપણું છેલ્લું જીવન આપણે પરમાર્થમાં છે. નહીં તો આમાં ને આમાં દુઃખીમાં ચક્રમાં ફેલા જ કરશું. પરમાર્થ તરફ જો આગળ જતા હશું તો એક ને એક સ્ટેપ કરતા કરતા આપણે ઉર્ધ્વ દિશામાં જશું. અને ઉર્ધ્વ દિશા જ આપણા માટે ભગવાને આપણને એટલા માટે મનુષ્ય અને પ્રાણીમાં આ જ ફરક છે. પ્રાણી છે એને ઉર્ધ્વ દિશા નથી મળતી, કારણ કે એના મગજ નથી, બુદ્ધિ નથી, વિચાર શક્તિ નથી. આપણામાં વિચાર શક્તિ છે. આપણામાં આપણને ભગવાને આપી છે કે માનવ તું જા અને તારી ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કર અને તો જ તું મને શરણે થશે. કોઈ દિવસ પ્રાણીને તમે જોયું કે ભગવાનને શરણે થયા હોય? કોઈ પ્રાણીને, કોઈ કૂતરો, કોઈ પણ માનવ થયા છે. સાંભળો છો? આપણે સાંભળીએ છીએ ને કે માનવ તો થયા જ છે જેને ભગવાનને પામ્યા. નરસિંહ મહેતા છે, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, ઘણા બધા સંતો છે કે જેને ભગવાનને પામ્યા છે, જેને ભગવાન જેવા છે એને પામ્યા છે. તો એ મનુષ્ય થયા છે તો પામી શક્યા છે. આપણે ભગવાને મનુષ્ય જન્મ એટલા માટે જ આપ્યો છે કે તમે ઉર્ધ્વગામી થાઓ અને તમારું જીવન કલ્યાણ કરો અને મને પામો. મને પામશો એટલે તમારું મોક્ષ છે. આ જ મોક્ષ છે. કૃષ્ણના ચરણને પામવા એ જ આપણું મોક્ષ છે. જે મોક્ષ જે કહે છે કે ભાઈ હું બીજા જન્મની આકાશમાં ફરતો રહીશ, એ મોક્ષ નથી, એ તમારી ગતિ નથી. એ આપણી ગતિ એ જ છે કે આપણે કોઈ પણ જન્મ ન લઈ અને કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં આપણે સેવા કરીએ, એની સેવાની પ્રાપ્તિ કરીએ, એ જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આપણું પ્રયોજન એ જ છે કે આપણે હંમેશા કૃષ્ણ, કારણ કે જીવ છે ને એ ગુણ સ્વરૂપે તો નિત્યદાસ છે કૃષ્ણનો. જીવેર સ્વરૂપે કૃષ્ણ નિત્યદાસ. આપણું જયારે જીવનું ગઠન થાય છે, ભગવાન જયારે આપણું ગઠન કરે છે જીવનું, ત્યારે એને એક સ્વભાવ આપે છે. એ સ્વભાવ છે કૃષ્ણના સેવા કરવાનો. અને આ સ્વભાવ છે આપણે આ જન્મ, આપણે આ પૃથ્વી પર આવ્યા પછી આપણે આપણા ઉપર અવિદ્યાને કારણે આપણે ઉઠાવી લીધા છે, માયાને કારણે આપણે ઉઠાવી લીધા છે. હવે એ માયાનું ચક્ર દૂર કોણ કરશે? એ માયાની કવરિંગ કોણ દૂર કરશે? ગુરુ, સત્સંગ કરશે. અને એ ગુરુ અને સત્સંગને કારણે આપણામાં રહેલી માયાના વમળ જે આપણામાં વીંટાળેલા છે આપણા શરીર પર, આપણા સૂક્ષ્મ શરીર પર, એ દૂર થશે. એ પડર દૂર થશે તો આપણું જે ઓરિજિનલ જીવ છે, જયારે જેનું ગઠન થયું છે, જયારે ભગવાને જીવ તરીકે આપણે ગઠિત કર્યા છે, એ ગઠિત થયા છે, એ સ્થિતિ આપણે પામશું. એટલે આપણે ચોક્કસપણે ભગવાનના દાસ થઈ જશું. માટે આપ સૌને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. અમારે અહીંયા આપ જાણતા જશો કે સિદ્ધિવિનાયક નગરની આગળ કચ્છ મિત્ર કોલોનીની સામે અમારું મઠ તૈયાર થઈ ગયું છે. એ મઠ તૈયાર થઈ ગયું છે અને અમારા ગુરુદેવ દર વર્ષે ત્યાં ભાગવત સપ્તાહ કરે છે. અત્યારની ભાગવત સપ્તાહ તારીખ 15/11/2025 થી તારીખ 21/11/2025 સુધી ચાલુ છે. આપ સૌ, અને એનો સમય છે સાંજના 4:30 થી 8:30. આપ સૌને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે, આ વડીલોને, કે આપ ત્યાં જરૂરથી પધારો. આપ ભાગવત સપ્તાહનો લાભ લ્યો, આપ સત્સંગ કરો અને આપનું કલ્યાણ કરો. ભાગવત સપ્તાહના દિવસ કથા પછી મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન છે. એટલે આપણે ઘરે કોઈ રાંધવાની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપ જરૂરથી પધારો એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. ફરીથી આપ સૌ આવી પધાર્યા છે માટે હું આપ સૌનો અમારા મઠ વતી આભાર માનું છું, અમારા ગુરુદેવ વતી આપનો આભાર માનું છું. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે,
हरे राम 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 हरे हरे। एक बार ये खत्म करना है नहीं। दो 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 डेढ़ 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 चले आप चलाइए गुरुदेव, आप चलाइए। हाँ आप चला सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। लोग चले जाएंगे ना आप लोग के घर में। सोमवार है ना आज। કેટલા વાગ્યા સુધી સોમવાર કા કોઈ કેટલા વાગ્યા સુધી કથા સાંભળી શકાય એમ છે? સોમવાર કે સાચું કહી દેજો બધા કહી તો દો વેપરાણ ગુરુદેવ પેલા આપણે દોઢ વાગ્યા કથા સુધી કરે. એક સાથે બધાય પ્રસાદ છે બધાય માટે એટલે બસ. પ્રસાદ પણ છે અહીંયા, પ્રસાદ અહીં જ લેવાનો છે. वो प्रसाद बच्चा के प्रसाद कर गुरवे गौरचंद्राय रधिकावे तदावे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग अभी जिसके घर में, क्या नाम है आपका? पूजा देवी की जय। बहुत आपके घर में और कौन कौन है? दोनों हैं? माधव और युग, और युग कौन है? दो बेटा है. दो बेटा है। प्रभु जी बाहर कहाँ रहते हैं? जामनगर में रहते हैं। अच्छा, आए नहीं अभी तक? आप बुला लो, बोले 7 दिन में कम से कम एक दिन भागवत कथा में अटेंड करे। हाँ, फोन करके बुला लो। है जामनगर तो बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे की रास्ता है। घर के पास ही भागवत कथा हो रही है, इसलिए आना जरूरी है। क्या बोले? बोले आना जरूरी है। क्या काम करते हैं उधर? माइंस का काम करते, कहीं भी नहीं, काम तो सारा जीवन करना ही पड़ेगा। धन भी हर सारा जीवन, जब तक सांस चले तब तक धन कमाना पड़ेगा, और कमाती भी है लोग। किंतु देखो, ये भागवत कथा सत्संग ये अत्यंत दुर्लभ है कि नहीं? मनुष्य जीवन भी दुर्लभ है, किंतु जैसे भी हो आपकी सब, आपके लिए अशेष आभारी है हम लोग। ये आप लोगों ने यहाँ पर आज जो बुलाया है, नहीं, आप जो हमें बुलाया, हर लोग को बुलाते नहीं है, आपने बुलाया कि नहीं बुलाया? आपने बुलाया, ये कम सौभाग्य नहीं है, सब लोग बुलाते नहीं। और भी बुलाते हो, उनके पति मना करेगी, नहीं तो पत्नी मना करेगी, नहीं बेटा मना करेगी, बेटी मना करेगी, हम जानते हैं सब है। किंतु आपने जो बुलाया ये कोई साधारण नहीं है,
है। ये आपके लिए हम लोग सब के आपके लिए आभारी है। उनके लिए जोर से ताली दो। है? हाँ है। हम जब बंगाल में प्रचार में जाते हैं है महाप्रभु की उत्सव के लिए, एक एक दिन कम से कम 8-10 घर में हमें जबरदस्ती बुला करके ले जाते हैं। हम कहते भाई सुबह 6 बजे, मुझे पूछो जो लोग हम हमारे साथ जाते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे हम निकाल जाते हैं, रात 10 बजे हम निकालते हैं। एक एक घर में जाते जाते वो जबरदस्ती बुलाते रहते, अरे नहीं हमारे घर में आओ, 2 मिनट के लिए आओ। है आज समझे, धीरे धीरे इधर भी करोगे, क्योंकि समंदर ज्ञान नहीं हो रहा ना। जब समंदर ज्ञान हो जाएंगे तब देखो आप लोग भी बुलावे, महाराज हमारे घर में आओ। बोले क्यों? बोले देखो इस संसार के लोग कुछ फल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं। कौन सा फल चाहते हैं? केला, अमरूद, सेब? नहीं, ये तो फल आपको बाजार में मिल जाएगा, है लेकिन खरीदने से मिल जाते। किंतु देखो जो फल कहते हैं प्रेम फल जो है वो बाजार में नहीं मिलेगा। मिलेगा? आप बताओ। है प्रेम फल कहां मिलेगा? बोले संत महात्मा के संग से। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। राम जी की कृपा जब तक नहीं हो, सत्संग साधु संग नहीं होता है, और साधु संग नहीं हो ये प्रेम फल नहीं मिलता है। इसलिए आप जो संत महात्मा के बुलाया ये कोई साधारण नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की बुलाया है, कोई भी आया कोई भी नहीं आया, हम जानते हैं। जितने लोग के बुलाया सब लोग नहीं आए, आया कि आप पीछे घूम करके देखो, जितने लोग के बुलाया उस काफी लोग आए, कि काफी लोग नहीं आए कि उनके समय नहीं है, उनके भी दोस्त नहीं है। किसी के घर में कुछ है, कोई स्कूल जाना है, कुछ बिजनेस में जाना है, और कुछ काम करना है। बात सही है कि नहीं है? कोई भी 2 मिनट के लिए भी आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं, चलो पूजा बहन ने बुलाया तो आगे है। अटेंडेंस स्कूल में होता है ना, अटेंडेंस दे करके बस। क्या करें, इस संसार है, कर्ममय जीवन है, दोष किसी का नहीं, हम दोष किसी को देखते नहीं है। क्योंकि कलियुग है, समय सबके पास नहीं है। समय है किसके पास बोलो? कुछ समय बैठने के लिए समय नहीं होता है। किंतु जो व्यक्ति आए हैं, जितने समय तक बैठे हैं, वो भी कम नहीं है। क्यों? कलियुग है। सत्य युग में लोग ध्यान लगा करते थे। क्या करते थे? ध्यान करते। ध्यान कैसे करना है? चित्त मन के अपने इष्ट देव में लगाना ही ध्यान कहता है। इसलिए भागवत में लिखा है, कृतज्ञ ध्यातो विष्णु त्रेतायांग जजते मखई दापरे परिचर्चांग कलो केशव संकीर्तनम। सत्य युग में लोग ध्यान करते थे। क्यों? ध्यान कैसे करते थे? चित्त मन पवित्र रहता था, आहार भी शुद्धि होता था। आज का आहार शुद्धि कहां से मिलेगा आपको बोलो? है गाय छोड़ देते हैं, और गाय रास्ता में क्या खा जाते हैं? अब तो कागज खाता है, उधार उधार करके खा लेते हैं, प्लास्टिक भी खा लेते हैं। मैंने वही देखा जो वो क्या बोले, ये पोड़ा हुआ था, क्या बोले उसको पुठा बोलते हैं, गुजराती में पुठा बोलते हैं। कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, उसको भी खा रहे हैं। उसके भूख है, भूख लगी है नहीं है? अच्छा भाई इधर उधर के वस्तु खा लेते हैं, तो दूध कैसे देगी? शुद्ध दूध तो नहीं होगा। किंतु देखो सत्ययुग में फसल बारिश समय पर होती थी, फसल भी होता था। शास्त्र में लिखा है। उस समय राज्य में, किसी के राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। अकाल समझते नहीं है? ड्राउट नहीं होता था, सूखा नहीं पड़ता था, जिससे जो है समय पर बारिश होती थी, फसल होता था, और सबके घर में फसल भरा रहता है। गाय आदि जो है सबको खिलाए खाता था। कलियुग है, कहें भाई रास्ते में तो देखता हूँ, इसमें देखता हूँ इतने रास्ते में गाय दौड़ते रहते हैं, गाड़ी चलाना भी मुश्किल होता है, देखता हूँ।
है, देखा है कि नहीं देखा? रास्ते में कितने गाय दौड़ रहे हैं। हमारे प्रभु जी तो गाय रात 12 बजे 10 बजे गाड़ी चल रही है और 10 भैंस आकर रास्ते में खड़ी हो गई। कहां से? है काली रात और काली भैंस आकर खड़ी हो गई। प्रभु जी में ब्रेक मार दे, नहीं तो पता नहीं यदि जोर से चलाते सब क्या हो जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कलियुग में शुद्ध दूध कहां से मिलेगा? है बात ऐसी है कि दूध अच्छी दूध नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी खा भोजन नहीं हो तो ध्यान कहां से लगेगा? मन ऐसे नहीं लगेगा, चंचल हो जाता है। इसलिए कलियुग के मनुष्य के मन कैसा थी वह चंचल है। ध्यान कहां कर पाए? 2 मिनट आंख बंद करो नींद आ जाएगी, है ध्यान कहां से होगा? नींद नहीं, ध्यान नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है ये कलियुग में ध्यान की बारे में नहीं कह रहे हैं। त्रेता युग में लोग यज्ञ आदि करते, फायर सैक्रिफाइस करते थे, किंतु अभी फायर सैक्रिफाइस कहां से करोगे? यज्ञ कैसे करोगे? अच्छी शुद्ध घी नहीं है, डालडा घी बाजार में मिलता है, इतने वो देखा तो पिघलता नहीं है, इतने गर्मी में भी आग में दिया वो भी पता नहीं उसमें क्या चर्बी फर्बी सब मिलावट है। आप बताओ, है चर्बी जो है उसमें मिलावट है, उससे अग्नि देवता उसके ग्रहण करेंगे? आप बताओ, नहीं करेंगे। और कपूर भी जलता ही नहीं है ये उस दिन जला दे, वो आग में जल नहीं रहा है, क्या करे? है पता नहीं, आजकल केमिकल से सब बनाया गया। अच्छा बताओ, यज्ञ कैसे होगा? फायर सैक्रिफाइस कैसे होगा? द्वापर युग में लोग अर्चन आदि करते थे, किंतु कलियुग में अर्चन भी ठीक से नहीं होगा। कलियुग में इसलिए क्या कहा? कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल नाम संकीर्तन बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम संकीर्तन हम लोग भी प्रातः काल में मंगलारती किया, मंगलारती करने के बाद हम लोग 20-25 जो है ब्रह्मचारी सब हम लोग निकल पड़े। बोले मॉर्निंग वॉक क्या करें? बोले नाम संकीर्तन करें। देखो हमारे प्रभु जी आए हैं, अमेरिका से आए हैं, मृदंग तो बजा रहे हैं सुबह से लेकर के अभी 12 बजे 1 बजे तक मृदंग बजाते जा रहे हैं। और पूरा रास्ते में कीर्तन। हमारे ये प्रभु जो है इंग्लैंड से आए हैं, देखो ये पूरा रास्ते में कीर्तन किया, पूरा अकेला है, और हम लोग पीछे पीछे चलते जा रहे अब प्रभु जी हमारे लीड कर रहे थे कहाँ जाना है, क्योंकि स्थानीय लोग इधर के हैं। तो हम सुबह से लेकर के 7 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 तक है परिभ्रमण किया, नाम संकीर्तन किया, क्यों महाप्रभु के आदेश है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलियुग में केवल नाम है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। कलियुग में और कुछ नहीं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम 3 बार कहा गया। हरे नाम क्यों? केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कलु नास्तिव नास्तिव 3 बार क्या बोली? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? बोले कर्म के द्वारा आपके भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा नहीं होगा। किसके द्वारा? एकमात्र हरिनाम के द्वारा। हरिनाम है, नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। केवल नाम ग्रहण करने पड़े और कुछ करना नहीं है। प्रातः काल में उठ करके आप क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें आपके जितने समय मिले थोड़ी सी समय ठाकुर जी के नाम ले लेना बस। है कौन सा नाम लेंगे आप बताओ? है किसके नाम? यही महामंत्र कलियुग में केवल महामंत्र का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हरि नाम करो। प्रातः काल में उठ करके कुछ करना नहीं है, मुंह हाथ धोए नहीं धोए कोई भी बात नहीं, शुद्ध सदाचार हो अथवा नहीं हो, पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, नाम ग्रहण के कोई विधान नहीं है। नम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति श्रावित निमित्त स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममेपि दुर्दैव दिश अजनु ननु राग। नाम नमक नाम और भगवत, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। और नाम ग्रहण के किसी प्रकार शुद्ध अशुद्धता विचार नहीं है। क्या बोला? शुद्ध अशुद्धता विचार नहीं। आप स्नान किया कि नहीं किया है कोई बात नहीं। जैसे पूजा अर्चन आदि करे, मंत्र जप आदि करे, उसमें शास्त्र में लिखा गया शुद्ध सदाचार होनी चाहिए। प्रातः काल के स्नान करके, तिलक लगा करके, कंठे लगा करके फिर मंत्र जप करे। किंतु नाम ग्रहण में कोई विधान नहीं है। एकदम नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापित निमित्त स्मरण न कालो। कोई नाम ग्रहण में कोई विधान नहीं है। भगवत और भगवत नाम में कोई भेद नहीं। क्यों? कलियुग में स्वयं भगवान नाम में सारे शक्तियों के प्रवेश कराया है। भगवान देखा तो कलियुग के जीव कुछ कर नहीं पाएंगे। कलियुग के जीव बहुत आलसी है। आलसी समझते हो? वेरी लेजी है। बोले और थोड़ा सो लेता हूं, और थोड़ा करते करते 9 बज गया है। अब तो नौकरी जाना है, हैं? अब तो नौकरी जाना है, अब तो नगरी में जाना है, 10 बजे जाना है। जल्दी 9 बजे उठ करके स्नान आदि करके बस है, थोड़ा भोजन आदि पैक करके चले। अच्छा बताओ, फिर 10 बजे रात 10 बजे है वापस आए और थक जाते हैं। फिर थोड़ा भजन किया, फिर विश्राम किया, सो गए। तो भगवत भजन कैसे? इसलिए करे कलियुग में कुछ करना नहीं है। चलते फिरते जैसे खाते पीते सोते किसी भी प्रकार से हरि नाम कर सकते हैं। नाम करने कोई विधान नहीं है। एक बार नारद ऋषि कथा सुनाते हैं, सुनिए अच्छी तरफ से। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक कोल्लू के पास जा गए। कोल्लू जानते हो कि नहीं? नहीं। जो पहले सरसों के पीसते थे हैं, उसमें एक बैल के जो है जोड़ देते थे, वो घुमाते थे। क्या बोलते हैं? घानी वाला। घानी वाला, घानी है, घानी तेल है, शुद्ध घानी के सरसों तेल। वो घानी वाला जो है वो ऐसे। और उसके बैल के जो है आंख में पट्टी बांध दिया, नहीं तो बैल सोचे थे एक ही रास्ते में घूम रहे, वो जाएंगे नहीं है। इसलिए उसके आंख में पट्टी बांध दी, बैल के आंख में पट्टी बांध दिया। और उसके पीछे पीछे वो कोल्लू जो है, क्या बोलते हैं इसको? तेली बोलते हैं हम लोग। अच्छा तेली, वो तेली जो है उसके साथ चलते रहे। हट 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 चलो, नहीं तो जाएगा नहीं है। एक तो उससे कान आंख बंद हुआ है। और जब तक वो पीछे व्यक्ति जब तेली जब तक नहीं बोले हट हट हट, बैल सोचेगा हमारे पीछे कोई आई नहीं है। इसलिए वो घानी वाली जो है तेली को बीच बीच में क्या बोलना पड़ता है? हट 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 चलो है। अच्छा, और बीच में छोटा सा लठी देकर स्पर्श करते रहते, पिटता नहीं है, मनुष्य उसके ऐसे पतित करा देता है जे उसके पीछे उसके मालिक है। और वो बैल सोचता है मैं बहुत दूर तो मैं चल रहा हूं, कि तो घूम रहा कहां पर? एक ही स्थान पर वो घूम रहे बैल जो है। अच्छा, एक दिन नारद ऋषि वो तेली के पास आ गए। तेली के पास आकर के बोले भाई तुम थोड़ा हरिनाम करो। बोले हमारा नाम करने का हमारे समय ही नहीं है। भाई देखो मैं सुबह 4 बजे उठ करके आ जाता हूं, और ये सरसों के पीसने के लिए मैं यही बैल के पीछे पीछे हेट 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 करके चलता रहता हूं, मेरे समय नहीं है। बीच में थोड़ी सी भजन कर लेता हूं, फिर वो उसके गाय के पीछे पीछे अच्छा सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक है मैं ये काम करता हूं।
मेरे पास समय नहीं। भाई समय हो तो करेंगे ना। जैसे हम किसी को कहते हैं भाई थोड़ा हरि नाम कर लो, कहते महाराज मेरे पास समय नहीं है, मेरे स्कूल जाना है, मेरे ये काम करना है, वो काम करना है। समय किसी के पास आए भाई बताओ सही? कोई का समय नहीं। चलो उसी प्रकार तेली बोले नारद ऋषि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे भगवान के नाम करें? तो उस समय नारद ऋषि बोले तुम पायखाना पेशाब में जाते हो? बोले हाँ जी, थोड़ा 2-5 मिनट के लिए चला जाता हूं। अच्छा, जब तुम पायखाना करते हो, बैठते हो, उस समय भगवान के नाम कर लेना है? अच्छा चलो, बोले इतने समय तक कर सकते हो ना? 10 मिनट 5 मिनट जो आप बाथरूम में जाते हो उतने समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल तो सबके घर में अटैच बाथरूम है ना, उस समय तो नहीं था। आज से 50-60 साल से हम लोग भी नहीं देखा है। 50-60 साल पहले हम लोग गांव में किसी घर में अटैच बाथरूम नहीं था है? तो हम लोग कहाँ जाते थे? कम से कम 1-2 मील है गांव की तरफ हम लोग रास्ते में चलते जाते थे। वहां पर जो है सोचो क्रिया आदि करते थे। चलो, तो उसी प्रकार वो कोलू ने किए कि तेली, कोलू तेली एक ही है ना? हाँ चलो तेली बोल रहे, अब तेली बोल रहे। वो तेली के कि ना चले गए, जंगल में चले गए, पैखाने के लिए बैठे और फिर नारद ऋषि की कथा स्मरण आ गया। ये नारद ऋषि ने कहा ये तो थोड़ा भगवान के नाम जप कर लो। और सबसे सरल नाम कौन सा है बताओ? बताओ सबसे सरल नाम कौन सा है? जो नाम बहुत सरल नाम कर सकते हैं, राम। कृष्ण नाम करने से जिहा को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है? कृष्ण टेढ़े है, टेढ़े है ने, तू टेढ़े है, टेढ़े नजरी ब्रज टेढ़ी, तुम सब टेढ़ी 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 ब्रज में गाते है? और किंतु हमारे राम कैसे है? बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल। तो इसलिए नारद ऋषि बोले अच्छा ठीक है, तुम एक काम कर, राम नाम जप करना। क्या नाम? हाँ थोड़ा ध्यान से सुनो सब है, राम नाम जप कर। तो तेली क्या करने लगे? देखो पायखाना करने बैठे और जप करने लगे राम। सब भी बोल, अरे कहां जाए? राम नाम इधर बोल, बैठे सब। अरे सुनो कथा, आपको चेयर चाहिए? अरे वो चेयर बैठ जाएंगे, कथा में बाधा होनी नहीं चाहिए है? हाँ हाँ यहाँ पर भी जगह है, आ जाओ बैठो, ये भी जगह है। हाँ बैठो, कथा सुनो, कथा में अटेंशन होना चाहिए है? आज में हाँ क्या बोला? राम नाम जप कर। वो तेली क्या करने लगे है? राम 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 है। चलो 100 नाम राम नाम करने लगे। बोले जहां पर राम नाम होते ना हनुमान वहीं पर प्रकट हो जाते है। जहां पर राम नाम जप होगा वहीं पर कौन प्रकट हो जाते? हनुमान जी। बोलो बजरंगबली की जय। बजरंगबली प्रकट हो गए। बजरंगबली राम हनुमान जी देखा, अरे ये पायखाना कर रहे, हमारे प्रभु के नाम ले रहे। हनुमान के हो गया क्रोध, गुस्सा आ गया। हनुमान ने क्या की, जोर से जाए उसके पीठ पर लात जमाई। देखो जो हनुमान रावण के सिर पर ऐसे लात जमाया, रावण भी गिर गया था, उनके मुकुट समेत रावण गिर गया था। किंतु देखो वो कोलू राम नाम जप करे, उसके कुछ नहीं हुआ है। वो तेली जो राम नाम जप कर रहे थे, हनुमान आकर उसके पीछे ऐसे मारा, लात मारा जैसे लग रहे हैं थोड़ा सा कोई एक रुई जैसे पीछे गिर गया। जोर से ताली दो। किंतु हनुमान इतने जोर से लात मारा किंतु उसके कुछ नहीं हुआ है। हनुमान जी लात मार करके चले गए अयोध्या में, जहां पर भगवान रामचंद्र बिस्तर पर सोए हुए थे। और हनुमान जी जाकर के देखा
रामचंद्र के बुखार आ गया, प्रभु के बुखार आ गया, 103 डिग्री बुखार, और शरीर इतने टूट रहा है? और हनुमान जी आगे बोले, प्रभु आपके तो अभी देखा मैं 2 मिनट पहले आपको तो यहाँ आपके पास ही था, आप तो ठीक थे, अभी बुखार कैसे हो गया? रामचंद्र बोले, हनुमान क्या बताऊं, एक व्यक्ति इतने जोर से मुझे लात मारी, इससे मेरे शरीर मानो टूट रहा है, और जिससे मेरा बुखार आ गया। इसके सुनते ही हनुमान की आंख लाल लाल हो गया। बोले, प्रभु जी बताओ वो कौन व्यक्ति है जो आपको लात मारने की साहस किया, आप हमें बताइए। अरे लंका में रावण को तो मैं उस दिन क्या बोले, उसके सिर को मैं कर देते थे, बोले चुरमार कर देते थे, केवल आपके लिए ही तो रखा था, उसको मारने के लिए। है रावण तो मर गया, अभी कौन ऐसे वीर है, महाबली है जो आपके लात मारने के प्रयास किया, उसके नाम बताइए। देखो भगवान रामचंद्र बोले, हनुमान क्या बताऊं, नाम बताऊं कि नहीं बताऊं? प्रभु बताइए अभी अभी बताइए, कौन ऐसे दुष्ट है ये मेरे प्रभु के पीठ पर लात मारने के साहस किया है? उसके 1 सेकंड में मैं जम घर में पहुंचा दूंगा। है हनुमान ऐसे बोलने लगे। फिर रामचंद्र बोले हनुमान क्या बताऊं, उसके नाम बोलने में मेरा लज्जा आ रहा है। नहीं बताइए प्रभु, हमें बताइए। है हनुमान इसे जोश से बोलने लगे। तब उस समय भगवान रामचंद्र बोले, हनुमान अच्छा तुम तत्व सिद्धांत जानते हो कि नहीं? बोले हाँ जी। है बताओ मेरे नाम और मुझ में क्या अंतर है, राम नाम और राम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। प्रमाण है कहीं शास्त्र में? कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाओ। भगवान राम नाम और राम में कोई अंतर है क्या है? कहां प्रमाण? श्लोक बोलना पड़े, लोग बोलने से मानेगा नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नमी, अभिन्नत्वात् नाम नमी। नाम और नाम में कोई, नामी में कोई भेद नहीं है। हम लोग के नाम और नाम में भेद है, शरीर और शरीर में भेद है। ये शरीर है और इसके अंदर में आत्मा है, उसके शरीरी कहा जाता है। शरीर और शरीरी, देह और देही है, गृह और गृही। आप गृह है कि गृह है? गृह है, आप लोग घर में रह रहे हैं, और गृह ये है, दोनों अलग है? इसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी देखते हैं सब भेद है? किंतु भगवान, उनकी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहता है नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी बोले, प्रभु नाम नामी में कोई भेद नहीं है? बोले हाँ, अच्छे सिद्धांत तो बताया। भगवान रामचंद्र बोले, हनुमान तुमने अच्छे सिद्धांत तो बताया है, अप्रिशिएट है, अच्छा बताया। अच्छा बताओ, तुम आज गए थे वो तेली के पास? बोले हाँ। वो तेली क्या कर रहा था? बोले प्रभु आपके नाम जप कर रहा था। तो तुम उनके लात मारी? बोले हाँ, मेरा गुस्सा आ गया, पायखाना कर रहा था, मेरा नाम कर रहा था, आपके नाम कर रहा था, इसलिए मेरा गुस्सा आ गया। तो भगवान रामचंद्र बोले, अच्छा बताओ, जब वो मेरा नाम जप कर रहा था, वो कहां था, मैं कहां था? भाई मैं, आप उसके अंदर में ही थे, अंतर बाहर आप ही सर्वत्र ही है। अच्छा बताओ, तेली के तुम जो लात मारी, किसके लात मारी? मुझे ही लात मारा। हनुमान लज्जित हो गए, प्रभु मैं समझ गया, यही मेरा दोष है। तो भगवान रामचंद्र की किसने लात मारी? हनुमान। तो हनुमान विचार करने लगे, प्रभु आज से ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा,
जो भगवत नाम जप करते हैं उसके मैं क्या करूंगा? पूजा करूंगा। आपके नाम भी पूजा है कि नहीं है? वो जो पूजा दीदी की जय। नाम भी आपके अच्छा ही है? नाम जैसे है कम ऐसे है? नाम और कम एक होने चाहिए है? अच्छा है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है नाम और नाम ही अभिन्न। इस प्रकार इस लीला के द्वारा हनुमान हमें शिक्षा भी देते हैं। ये तो लीला कर रहे हैं, शिक्षा देते हैं नाम नाम में कोई भेद नहीं, और कलियुग में नाम करने में कोई देश काल पात्र जरूरत नहीं, समय नहीं है। किसी भी समय उठ करके नाम कर सकते हो है? जैसे पूजा आदि ठाकुर के पूजा आदि करने के समय रखा गया, प्रातः काल में ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए है, त्रिसंध्या मंत्र जप करना चाहिए, प्रातः काल में मंत्र जप करना चाहिए, फिर दोपहर को मंत्र जप करना चाहिए, और फिर सूर्यास्त के बाद मंत्र जप करना चाहिए। इसी कहा जाए त्रिसंध्या कहा जाता है। त्रिसंध्या जप तप ध्यान शास्त्र में लिखा है। 3 संध्या जो है अर्थात प्रातः काल में और मध्याह्न काल में और संध्या काल में है, 3 समय जप करना। किंतु कलियुग में नाम किसी समय कर सकते हैं, नाम करने की कोई बाधा नहीं है। प्रातः काल में करे, मध्याह्न काल में करे, रात 12 बजे करे, रात 1 बजे करे, पवित्र अपवित्र शरीर किसी भी अवस्था में नाम कर सकते हैं। नाम करने की कोई विधान नहीं है, किसी समय नाम जप कर सकते हैं। माला ले लिए बैठे, जैसे आपके समय नहीं है, प्रातः काल में बाल बच्चा स्कूल में जाते हैं, उसके देखभाल करना, पतिदेव ऑफिस में जाते हैं, उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, बेटा बेटी के लिए स्कूल के लिए देना पड़ता है? समय नहीं है, कोई भी बात नहीं। जब आपके फुर्सत मिल जाए थोड़ा जपमाला लेकर के नाम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम करने की किसी भी नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और ये नाम में कह रहे हैं स्वयं भगवान अपने सारे शक्तियां को जो है प्रवेश कर दिया, सारे शक्ति जो है। देखो भगवान रामचंद्र लंका जाने के लिए क्या बनाया? पुल बनाया, सेतु बनाया। पुल बनाया कि नहीं बनाया? सेतु बनाया। किसके द्वारा बनाया है? बानर सेनाओं के द्वारा बनाया, बंदरों के द्वारा बनाया है। और एक एक पत्थर बंदर लोग एक एक पत्थर लेकर के राम नाम लेकर के डाल देते हैं जल में, पानी में, और पत्थर क्या हो जाता है? तरते आ जाते, तरते राम है। एक बार राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए थे, रामचंद्र विचार करने लगे मेरे नाम लेकर के एक पत्थर को डाले। कोई बोले राम नाम लिखा, बोले इतने नाम लिखने की जरूरत नहीं, बोले राम नाम लेकर के पत्थर को पानी में डाल दिया है, देखो पत्थर तरते जा। जिससे भगवान रामचंद्र विचार करने मेरे नाम लेकर के पत्थर को पानी में डाल रहे हैं और पत्थर पानी में तर रहे हैं, तो मैं भी एक पत्थर ले लेता हूं। भगवान रामचंद्र विचार कर रहे थे ये मैं भी एक पत्थर लेकर के पानी में डाल देता हूं, ये तरता है कि डूब जाता है, देखता हूं है। किंतु रामचंद्र मन में विचार करने लगे इस पत्थर के सबके सामने मैं डाल दिया, डूब गया तो मेरा हंसी मजाक होगा है। कोई लोग कहेंगे देखो इनके सेवक बंदरों पत्थर लेकर के प्रभु के नाम लेकर के डाल रहे हैं और पत्थर तर रहे हैं, और मैं सब वस्तु में भगवान हूं, मैं पत्थर को डाल दिया, यदि पानी में डूब गए सब लोग हंसी मजाक करेंगे है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने किया कि लघु शंका के बहाना से थोड़ी दूर आगे चले गए और जाकर के एक पत्थर को उठाया है परीक्षा करने के लिए, ये पानी में डाल देता हूं तैरता है कि डूब जाता है। भगवान रामचंद्र ने किया पत्थर को लेकर के पानी में डाल दिया, वो पत्थर क्या हो गया? क्या हो गया बता, जानते हो कि नहीं? डूब गया। इसलिए हनुमान जी आ गए, हनुमान जी कह प्रभु ये आपके कौन सा लीला है? भगवान रामचंद्र कहने लगे हनुमान देखो तुम लोग सब मेरे नाम लेकर के पत्थर को पानी में डालते हो, सब डूब सब तैरता है
और मैं पत्थर को लेकर के पानी में डाल देता हूं, वो डूब जाता है। इसके कारण क्या है? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप लीलाधारी हो, है आपकी लीला महिमा कौन वर्णन करे प्रभु। रामचंद्र बोले, हनुमान तुम बताओ, तुम लोग सब मेरे नाम लेकर के पत्थर को तुम डालते हो और पत्थर तटता है, और मैं वही पत्थर को लेकर के पानी में डोल छोड़ देता हूं और वो पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ। बोले बताओ हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जिसको आप अपने हाथ से फेंक दोगे, छोड़ दोगे, क्या वो तैरेगा? वो तो डूब जाएगा। है कि डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? तात्पर्य क्या है? प्रभु और प्रभु के नाम में कोई भेद नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप और आपके नाम में कोई भेद नहीं है, इसलिए आपके नाम लेकर के हम पत्थर की जब डाल देते हैं, पत्थर तैरते हैं। और आप ही जिस पत्थर को फेंक देते हो, अर्थात अपने दूर से जिसको फेंक दोगे, वो संसार रूपी समुद्र में वो डूब जाएगा। बोलो वृंदावन विहार। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के नाम जप करो, हनुमान के आश्रय लो। जो राम नाम जप करने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा? हनुमान के आश्रय लेकर के राम नाम जप करो। ये हमें शिक्षा देते हैं। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम है। किंतु नाम जप करने के लिए कह रहे कैसे? ना प्रभु के सेवक आश्रय, सेवक की चरण आश्रय लेना पड़ेगा। हनुमान के आश्रय बिना राम नाम है नहीं होगा, है। इसलिए कीर्तन क्या करते हैं जानते हो? राम के बिना चले ना दुनिया, है? दुनिया चले ना राम के बिना, राम की चले ना हनुमान के बिना। बोलो हाँ बताओ, बजाने वाला कोई है कि नहीं? राम की चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम की चले ना हनुमान, सब ताली बजाओ। चले ना राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। चले ना राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या हमें क्या शिक्षा देते हैं? ये भगवान के नाम जप करने के लिए भगवान की शिष्ट सेवक का आश्रय करना पड़ता है। आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। संग महादेव जी देवी पार्वती की कहने लगे। एक बार देवी पार्वती महादेव के बोले, प्रभु आप सच बताए किसको आराधना करनी चाहिए? है सबसे आराध्य वस्तु कौन है? Who is our worshipful deities? है उस समय शिव जी बोले, देखो देवी एक गोपनीय तत्व है, क्योंकि संसार के लोग अनेक प्रकार देव देवी की आराधना करते हैं। कोई गणेश की आराधना करते हैं, कोई शिव जी की आराधना करते हैं, कोई पार्वती की आराधना करते हैं, कोई सूर्य देव की आराधना करते हैं, सौर कहा जाता है, करते हैं नहीं? कोई अम्बा देवी का आराधना आदि करता है। इसलिए स्वयं देवी पार्वती महादेव के कहने लगे, हे पतिदेव आप ही बताइए, है हमारे आराध्य देव किसको आराधना करना चाहिए जिससे हमारे कल्याण हो, आत्म कल्याण हो। देखो शिव जी नहीं बोले जो मेरा आराधना करो, शिव जी नहीं बोले देवी पार्वती तुम गणेश जी की आराधना करो अथवा और देव देवी की आराधना करो। शिव जी स्वयं कहने लगे, आराधना सर्वेशां विष्णु आराधना परम, परम माने श्रेष्ठ। स्वयं महादेव जी कहने लगे, हे देवी पार्वती जितने भी आराध्य वस्तु है सबसे श्रेष्ठ आराधना वस्तु कौन है? विष्णु भगवान है। किसको आराधना करना चाहिए? विष्णु।
एक कृष्ण के एक नाम विष्णु है कि नहीं है? अच्छा, विष्णु की आराधना काल करना, जो विष्णु की आराधना करते हैं वह विष्णु मंत्र जप करते हैं, उसके क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। विष्णु मंत्र शिव के जो आराधना शिव मंत्र जप करते उसके शैव कहा जाता है। देवी दुर्गा के जो आराधना करते हैं उसके शक्त कहा जाता है, शक्ति के उपासक। जो सूर्य के उपासना करने वाले हैं उसके कहा जाता है सौर कहा जाता है। जो गणेश जी की आराधना करने वाले हैं उसे कहा जाता है गणपत्य कहा जाता है? और जो कृष्ण की आराधना करते हैं उसके कार्षणी कहा जाता है। केवल कृष्ण की आराधना करने उसके कार्षणी कहा जाता है? ऐसा जो राधा जी की आराधना करने वाले उसको क्या कहा जाता है? गौड़ीय कहा जाता है। काल भी बताया था ना। अच्छा, तो देखो देवी पार्वती शिव जी के बोले महादेव पतिदेव आप सच बताइए किसको आराधना करना चाहिए? क्योंकि कलियुग है, विवादमान है, सब झगड़ा करते हैं, बोले हम ही इसको आराधना कर उसका। किंतु महादेव सच कह रहे हैं आराधना सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम। सबसे आराध्य वस्तु कौन है? विष्णु है। हम होते कहते मेरा आराधना करो। शिव जी अपने नहीं बोला आराधना करने के लिए है। पतिदेव है ना, पतिदेव कहते थे बोले जाओ पति ही परम देवता, पति ही परमेश्वर है। अच्छा, बात सही है कि नहीं? शिव जी पति है कि नहीं है? केवल देवी पार्वती की पति है, तो क्यों नहीं कहा जे पति परमेश्वरम, ये मैं तुम्हारे पति हूं, मेरे पूजा कर, इधर उधर छोड़ करके सब मेरा पूजा कर। महादेव बोला कि नहीं बोला? है, समझ में आ रही कि? देखो महादेव नहीं बोला ये मेरा पूजा कर। महादेव ने क्या बोला? आराधनां सर्वेशां विष्णु आराधनम परम है। देखो विष्णु की आराधना करो, निरपेक्ष रूप में बताया है, विष्णु के पूजा करो। इसलिए कहता है आराधन सर्वेशां विष्णु आराधनम परम करके चुप हो गए। तो देवी पार्वती कहले भाई पतिदेव ये तो श्लोक के 2 चरण होता है, हर जो श्लोक होता है उसके क्या होता है? 2 चरण होता है। आज गीता में देखना उसमें 2 चरण होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुत्सव, एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन क्या है? मामी वो मामो का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दूसरी लाइन हम ये उदाहरण दे रहे हैं। हर श्लोक में अधिक रूप में हर श्लोक में 2 लाइन होता है, 2 चरण कहा जाता है। तो एक चरण बताया आराधना सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन अब तो बताया नहीं, शिव जी चुप हो गए। बोले बताइए पतिदेव। तब उसे महादेव कहने लगे देखो और भी गुज्जतमा कथा, वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग आई टेल यू है। बोले कौन, क्या बताइए आप? बताऊं? बोले हाँ जी है। तो उस समय महादेव जी कहने लगे हे देवी सुनो, आराधन सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, विष्णु आराधना श्रेष्ठ है कुछ, किंतु विष्णु का आराधना करने के लिए और एक की आपको आराधना करना पड़ेगा तो आप विष्णु प्रसन्न होंगे है। बोले वो कौन है? बोले तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। विष्णु आराधना करने के लिए उनके जो प्रियजन है, वेरी नियरेस्ट एंड डियर पर्सन, वो कौन है? गंगा, तुलसी, गुरुपाद पद, तदीय नाम समर्चनम है। अर्थात विष्णु के प्रिय कौन है? गंगा, तुलसी है और वैष्णव। गुरुपाद यहां पर लिख रहे हैं गुरुदेव की आराधना बिना विष्णु आराधना नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग किसका आराधना करते हैं? स्तुति करते हैं, गुरुदेव की स्तुति करते हैं प्रातः काल में उठ करके। संसार दाव नल नीडलोकम प्राणाय कारुण्य घन गणायतम भक्त सकलान गुणार्णवस वंदे गुरु श्री चरणारविंद महाप्रभुर की तनानित गीत बाधित मागन मनो सरसेन
रोमांचकं पशुतरंगभाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदं श्रीविग्रहारा धन नित्य नाना सिंगारतान मंदिरमजनादं युक्त स्वभक्तंश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री चरणारविंदं वंदे गुरो श्री। देखो, इसलिए विष्णु की आराधना करने के लिए विष्णु के प्रियजन कौन है? बोले गुरुपाद बने। क्या बताया? गुरु। गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नर के मजे। अच्छी तरह से आप लिख लीजिए, है? गुरु के छोड़ करके जो गोविंद के भजन भी करते हैं, अंत काल में उसके कहां पर जाना पड़ता है? नरक में जाता है। हम नहीं करें, शास्त्र में लिखा है गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नरक में। स्वयं भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, है प्रथमंतु गुरु पूज्यम। कथा क्यों बोले? चुप। प्रथमंतु गुरु पूज्यम। स्वयं भगवान कहने लगे पहले क्या करना चाहिए? गुरुदेव की पूजा करो, है? गुरुदेव की पूजा के बाद किसकी पूजा करना चाहिए? अरे गुरु ही वैष्णव, वैष्णव भी गुरु, कोई बात नहीं है, आप सही बता रहे हो। गुरु और वैष्णव, वैष्णव गुरु, ठीक है। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। भगवान कहते हैं पहले गुरुदेव की पूजा करो, इसके पश्चात मेरे पूजा करो। भगवान नहीं कहा जी मेरे पूजा पहले करो। भगवान क्या बोले? प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। इसके बाद क्या लेंगे? कुर्बन सिद्धिर्वा अवाप्नोति जो न था निष्फलं भवेत्। यदि गुरु के पूजा नहीं करके भगवान की पूजा कर दिया तो आपके सारे कार्य क्या है? निष्फल हो जाएगा, प्राप्ति कुछ नहीं होगा। इस श्लोक में स्पष्टीकरण किया है, इसको अच्छी तरफ से समझना चाहिए, है? इसलिए समस्त शास्त्र में लिखा गया है पहले गुरुदेव की पूजा होनी चाहिए, है? ये विचार है। इसलिए महादेव कहने लगे हे देवी पार्वती, विष्णु पूजा श्रेष्ठ है, किंतु विष्णु पूजा के पहले है उनके तदीय जन, अत्यंत निकटतम जन, जैसे गंगा कहा गया, गंगा तुलसी है, गुरुपाद पद्म। गुरु के पूजा के हम करते हैं, प्रातः काल में उठ करके गुरु के स्तुति आदि करते हैं, संसार दावन। इसके बाद प्रभुपाद के करते हैं, है? पहले प्रभुपाद के नहीं करते हैं, पहले किसको करते हैं? गुरु वंदन, है? इसके बाद प्रभुपाद, इसके पश्चात मंगला आरती करते हैं। इसके बाद क्या है? तुलसी पूजा आदि करते कि नहीं करते? ये तुलसी भगवान का अत्यंत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रिय, भागवत में लिखा है तुलसी जो है भगवान के अत्यंत प्रिय। ये तुलसी कृष्ण प्रिय है, इसलिए तुलसी पूजन होता है। तुलसी में जलदान देना, 8 प्रकार के तुलसी पूजन के लिए शास्त्र में बताया गया है। तुलसी के स्पर्श करना, दर्शन करना, स्तुति करना, है? उसमें जल देना, है? परिक्रमा करना, इस प्रकार जो है 8 प्रकार के तुलसी पूजन होता है। तुलसी से बना हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान का अत्यंत प्रिय, तुलसी गोविंद प्रिय। तुलसी बिना भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। ठाकुर जी के भोग लगाया है, 56 भोग लगा दी, किंतु उसमें एक चीज देने भूल गई। कौन सा? तुलसी देने, भगवान ग्रहण नहीं करते, है? इसमें लिखा है शास्त्र में 56 भोजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण। 56 प्रकार के भोजन आपने ठाकुर जी के पास रख दिया, किंतु सब दे दिया, जल भी दे दिया, कपूर भी दे दिया, आचमन भी किया, सब कुछ कर दिया, किंतु एक चीज भूल गए। कौन सा? तुलसी। तुलसी ने ठाकुर जी ग्रहण नहीं करे, है? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति पास नौकर था, सुनिए न, उसके रस्सी बनाना आता नहीं था नौकर का, है? सो मालिक बोले देखो तुम मेरे लिए
रस्सी बनाओ। बोले क्या बनाना है? दाल बनाओ। तो वो नौकर बोले मुझे दाल बनाना आता है नहीं है, आप बताओ कैसे, आप मुझे सिखाओ। मालिक बोले ठीक है तुमको मैं सिखा देता हूं। देखो एक काम करो, पहले कढ़ाई में जो है पानी गर्म करो और उसमें दाल के एक करके छोड़ देना है ना, पहले मसाला आदि और नमक आदि को छोड़ देना, बस सरल है, दाल पक जाएगा, बस हो गया। और क्या करना है, सरल है दाल बनाना, है कोई कठिन थोड़ी है। अच्छा, तो नौकर 2-4 दिन के बाद विचार करके मैं मालिक के लिए दाल बनाता हूं, है। आशो सारे मसाला दाल आदि सब रख दिया, पानी गर्म होने लगे और उसमें तेल भी दे दिया, नमक भी दे दिया, सारे मसाला दे दिया और उबालने लगे, है। उबालते उबालते थोड़ी समय मालिक को दे दिया। मालिक ने बोला दाल बन गया? बोले हाँ जी। आपने जैसे बोला बोल। मालिक बोले इसमें तो पानी पानी दिखा है, दाल कहाँ है? बोले महाराज कहने लगे हाँ जी मेरा एक भूल हो गया, एक भूल हो गया। क्या भूल हो गया? इसमें दाल छोड़ने में भूल गया। दाल बना रहे थे, क्या भूल गया? दाल ही नहीं छोड़ा। तो दाल बन गया कि नहीं? नहीं बना है। गर्म पानी बन गया बस, और कुछ। तो तात्पर्य क्या है? तो ठाकुर जी के लिए सब कुछ आप भोग लगाया, सब कुछ रख दिया, अच्छी तरह से बनाया, किंतु तुलसी अर्पित नहीं करने पर भगवान ग्रहण नहीं करते है। इसलिए कहते हैं 56 व्यंजन तुलसी बिना गोविंद ना करे ग्रहण, है। ये तुलसी पत्ता क्या है, क्या चीज, इसको भी तात्पर्य समझिए। और इज द सिग्निफिकेंस ऑफ तुलसी लिव्स? बोले भक्ति। क्या बोला? भक्ति है। एक तो तुलसी पत्ता भगवान के प्रिय है ही है। जैसे आप सालग्राम की सेवा आदि करते हो, सालग्राम के सेवा कैसे होती है? देखो एक तुलसी पत्ता रखना पड़ता है, चंदन लगा करके, तुलसी चंदन है, तुलसी पत्ता में चंदन लग करके रखना पड़ता है नीचे, और उसके ऊपर सालग्राम से लेकर रखा जाता है। फिर उसके ऊपर क्या रखना पड़ता है? फिर दूसरी तुलसी पत्ता चंदन सहित उसको रखना पड़ता है। नीचे तुलसी पत्ता और सालग्राम के ऊपर भी तुलसी पत्ता। देखो इसलिए कहते हैं ठाकुर जी गोविंद जय तुलसी पत्ता बिना सहन नहीं करते है, भजन भी नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे, माला भी गुथते हैं, इसमें तुलसी पत्ता है कि नहीं है? गोविंद देखते, गोविंद को अर्पित किया, इसे तुलसी पत्ता नहीं है, गोविंद अर्पण नहीं करते, शिकार नहीं करते। शास्त्र में लिखा गया तुलसी पत्र बिना गोविंद ना करे ग्रहण। जो बीज करोगे कम से कम तुलसी पत्ता देना चाहिए। तुलसी पत्ता यदि नहीं हो कम से कम स्पर्श करा दो, है। हर जगह में तुलसी पत्ता मिलता ही नहीं है। जैसे हम रशिया में जाते हैं, कहां पर जाते हैं रशिया में? साइबेरिया, पूछो -50 डिग्री, जहां पर ठंडी इतने बर्फ जमा हुआ, वहां पर जाते हैं साइबेरिया, नवस्विक, इतना ठंडी। रशिया क्या है इसको पूछो, देखो है। I am saying sometimes I used to go Siberia. They are very cold, coldest place. Sometimes they record -50. They are saying. गर्मी के समय हम जाते हैं, उस समय रहता है -10, -10, 20 रहता है, इतना ठंडी है। और ठंडी के समय वही लोग कहते हैं बिल्कुल बर्फ बर्फ दिखाई पड़े। वो तो आई नहीं है जो साइबर के रहने वाली है, क्या नाम उसको? हमारे कोई भक्त लोग रहते हुए पर, आप बताओ 2-3 महीने इतने ठंडी पड़ता है, जैसे -50। इंग्लैंड में 3-4 दिन पड़ जाता है, वे भी तरसते रहते। -50 होता है? नहीं होता है कभी, है। -1.5 मैक्सिमम 5 है। आप बताओ, तो वहां पर तुलसी कहां से मिल जाएगा? इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ये इंडिया जब आते हैं ना, वो सूखा तुलसी पत्ता ले जाते हैं और उसके 1 महीने केवल 6 महीने तक उसको यूज करता रहता है, थोड़ी दे करके ठाकुर के भोग लगाते हैं। और नहीं है तो क्या उसे स्पर्श करके रख देते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। स्थान काल विशेष के अनुसार करना पड़ता है। आप बताओ।
तो हम इसलिए कह रहे हैं भगवान जो ग्रहण करते हैं तुलसी बिना ग्रहण नहीं करें। ये तुलसी है क्या चीज? एक तो तुलसी की जरूरत होता है और दूसरी तुलसी की अंतर्निहित अर्थ है भक्ति है। शुद्ध भक्ति यदि नहीं हो, भगवान के अनेक कुछ दे दिया, ग्रहण नहीं करेंगे है। दुर्योधन में दुर्योधन के पास भगवान गए है, कृष्ण गए और दुर्योधन सोने के थाल में, महाभारत में वर्णन है, सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजन भोग ठाकुर जी के दिया, गोविंद के दे दिया, किंतु देखो गोविंद एक भी ग्रहण नहीं किया। उनके घर में खाया ही नहीं, दुर्योधन के घर में। और फिर आगे किसके घर में? विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में जब आए तो विदुर जी घर में नहीं थे, कहीं बाहर किस काम में चले गए थे। और उसमें विदुर के पत्नी विदुरानी घर में थी और गोविंद आए हैं। इतने सुनते ही विदुरानी जो है इतने आनंद में अधीर हो पड़ी, बोले गोविंद आए हैं, उसके क्या सेवा करो है। अंदर में गए, घर में गए, एक सूखा जो है केला पड़ा हुआ था। 2-3 दिन हो जाता है ना, केला में क्या होता है, काले काले हो जाता है ना। बाजार में केला खरीद करके रखे, 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है, उसमें काले काले हो जाता है, दाग लग जाता है। और उसी केला के मानो सूखे के केला को लेकर के आए, गोविंद के देने लगे। वो भी कैसे? छिलका को, केला को फेंक रहे हैं और छिलका को गोविंद को दे रहे हैं। और गोविंद कृष्ण ऐसे। और इतने समय विदुर जी आ गए। विदुर जी आकर के बोले, अरे विदुरानी तुम ये क्या कर रही हो है, भगवान आए हैं हमारे घर में और तुम्हें केला नहीं देकर किसी को केला क्या खिला रहे हो? छिलका। उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, हे विदुर, ना मैं केला खा रहा हूं ना छिलका खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं? बोले प्रेम, इसके भक्ति है। पूजा की मूल तात्पर्य क्या है? भक्ति है। आपके नाम पूजा है और आपके नाम ही भक्ति है। बोले भक्ति महारानी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए आपके भक्ति पूजा होने के नाते देखो सारे पृथ्वी के लोग आपके घर में आ गए हैं। सारे पृथ्वी के रिप्रेजेंटेटिव रूप में सब घर में आ गए। आपको इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव आ गई, क्या नाम है? इंदिरा देवी दासी। देखो इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव, ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव आ गई है। कौन आ गई? राधा कांति दीदी और एक अरे हमारे लीलावती देवी, नयन किशोरी और हमारी दीदी अरे रंग दीदी है। देखो सब है, तोरुणी दीदी भी आ गए, सब दीदी आ गए। और उसके छोटा बच्चा भी आए कि नहीं है? विष्णुनाथ भी आ गया, विष्णुनाथ आ गए है। सब देशों के लोग आ गया, अमेरिका से आ गए। और कौन कौन देश? ये अमेरिका है, कोलंबिया से लोग आ गए। देखो है, जिसका आप सोच नहीं सकते हो। न्यूजीलैंड हाँ है, ऑस्ट्रेलिया से और भी 1000 किलोमीटर दूर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से आगे कोई देश नहीं है, छोटा और एक द्वीप है जिसको कहा जाता है रमोनक द्वीप कहा जाता है, फिजी कहा जाता है। रमोनक द्वीप भागवत में लिखा है, रमोनक द्वीप, जिसे कालिया नाग को भेज दिया है। देखो कहां से लोग, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड। हॉलैंड से कौन आए? हाँ देखो हॉलैंड से दीदी आ गई, कृष्ण भाई वो दीदी है। फ्रांस से भी आ गई है। और कौन कौन देश? लिथुनिया कौन आए? हाँ देखो है, ब्राजील से आ गए है। अरे ये तो बोला अमेरिका, तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब लोग आ गए, सब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में आ गए पूजा दी के घर में है। क्योंकि यहाँ पर भक्ति है। प्रेम प्रदीप पूजा हवे तुम्हार प्रेम प्रदीप है। महाराज जी आप आ गए तो स्वयं वृंदावन आ गए। हाँ आज देखो वृंदावन से भी आ गए, हम भूल गए, ब्रजवासी लोग भी आ गए, सब से लोग आ गए। महाराज जी आप जहाँ हैं वहीं वृंदावन। कोई छोड़े नहीं, एक देश भी छोड़े नहीं है, सब देश से सब रिप्रेजेंटेटिव रूप में आपके घर में हो गए। क्यों? आप पूजा की तात्पर्य है भक्ति है। प्रेम प्रदीप आरती आवे तुम्हार, इसमें ग्रंथ में लिखा है
है नहीं? तो बहुत अच्छी की बात है। इसी प्रकार आप लोग भक्ति करें, भगवान की सेवा आदि करें, गुरु वैष्णव की सेवा करें। निकट में आपकी तो राधा गोविंद गौड़िया मठ हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद जो है ठाकुर जी की प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। जोर से ताली लगा है? सब लोग को आना ही पड़ेगा। कौन कौन आएंगे हाथ उठाओ, है? सबको मैं देख रहा हूं, सब हाथ उठाओ। बोले सब लोग ठाकुर जी की सेवा में आएंगे, है? हर रोज हाजिरी लगा, हाजिरी अटेंडेंस लगा दो, है? मंगल आरती में सब लोग आइएगा, है? गोविंद के दर्शन करो। बोले गोविंद के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है प्रातः काल में। देखो हम जयपुर जाते हैं ना, सच में देखा वहां पर लोग प्रातः काल में 4:30 बजे आरती होती है। इतने ठंडी भी, कड़क ठंडी में भी जयपुर में, राजस्थान में इतनी कड़ी ठंडी पड़ती, इधर तो ठंडी नहीं है, उधर ठंडी पड़ता है राजस्थान में। देखो 4 बजे से सारे लोग आके एकत्रित हो जाते हैं, मंदिर बिल्कुल भर जाता है और आधे घंटे खड़े रहते हैं ठाकुर जी के सामने, है? इधर के लोग तो 2 मिनट गए, ठाकुर जी बंद है बोले चले जाते हैं दूसरी जगह, घर छोड़। किंतु देखो गोविंद देव के दर्शन करने के लिए लोग 4 बजे से 3:30 कहीं के वो लोग भी, मैं पूछता रहता हूँ भाई कहाँ है, 1-1.5 घंटा गाड़ी चला करके, रात 3 बजे से गाड़ी चला करके लोग आते हैं। सच बुझा, मैंने पूछा उन लोगों, बोले आप लोग किस बजे? बोले हमारे घर जो यहाँ से 1 घंटा दूरी है। रात 3 बजे से उठ करके, 3 बजे उठ करके गाड़ी चला करके गोविंद देव के दर्शन के लिए। बोले एक दिन हर रोज आते हैं वो लोग, बोलते हैं गोविंद देव के दर्शन करने के लिए। आज जिसके ऐसी उत्कंठा है, भगवान की कृपा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। जोर से बोलो करेंगे। हाँ, है? इसलिए मैं आप लोग के निकट यही निवेदन करता हूं, यहाँ पर हमारे गोविंद देव मंदिर है, ठाकुर जी भी प्रतिष्ठित हो जाएगा, सुन, है? इसलिए आप हर रोज मंगल आरती में आएंगे, दर्शन करो ठाकुर जी के, बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन करो, है? और ठाकुर जी के परिक्रमा करो। इसके बाद आप अपने घर में जाओ, घर में जाकर के अपने जो काम आदि करते हैं, मंगल आरती में हर रोज अटेंड होनी चाहिए, है? फिर शाम को कथा जो होती है, कथा में आ जाओ, है? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बोले पूजा दीदी की जय, जय जय श्री राम। हाँ, हाँ, जोर से ताली दो सब लोग आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए अधिक समय नहीं है? हाँ, बेटा के नाम माधव बोल रहे, कितना सुंदर नाम है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हमारे भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज सारे विदेश में यही कीर्तन करते थे, हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी। बेटा के नाम अच्छा है कि नहीं है? कितने बेटा है? 2, और एक माधव और दूसरी युग। हाँ, अरे माधव रखा, गोविंद रखो। हाँ, हाँ, अरे युग में क्या करे? त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग, कौन सा युग? कली युग। कली युग तो वो तो झगड़ा करेगा फिर। राघव भैया नाम से हाँ, सरस नाम रखो, गोविंद नाम रखो, माधव गोविंद, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ, अच्छा है कि नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? माधव। कितने सुंदर नाम है कि नहीं? है, बढ़िया। हाँ, प्रभु जय राधा माधव कुंज बिहारी, है? हाँ, गोविंद देव के दर्शन करके चलो प्रातः काल। पूजा गोविंद देव और माधव। और पति के नाम है जयदीप। जयदीप। अरे जयदीप ना जयदेव बोल दो, बोल दो फोन करके। अरे गुरुदेव ने बोला आपके नाम जयदीप ना है, जय देव है। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, है? घर में पूजा होगा ना, सबकी पूजा होगी, है? अच्छा रहेगा, घर में आनंद हो जाएगा। है? बहुत अच्छा लगा आपके घर में आकर के। अभी समय हमारी
ज्यादा समय नहीं लेते, ठाकुर जी की आरती हो जाए, भोग लगा दिए ना। हाँ हाँ, सब लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा आरती कर लीजिए और फिर आप लोग सभी प्रसाद लीजिए।